Hello students, today we are going to discuss with the topic excretory system in human beings. We have already studied about excretion in plants and the process excretion, which is used for removal of waste material from the body. This excretory substances may include ammonia, urea, uric acid, along with the respiratory waste like carbon dioxide and other waste which are toxic in nature and may harmful for our body. These are also called nitrogenous substances. मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन प्रोसेसेस के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जो हमारे लिए इसेंशियल नहीं हैं, वो हमारी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करना ज़रूरी है. ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड. ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जो प्रोटीन, फैट्स या ज़रूरी चीज़ें बनाते वक्त बन जाते हैं. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के लिए, उनका प्रिपरेशन जब फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ ये हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बन जाते हैं. सो वी हैव टू रिमूव दीज टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी फॉर मेंटेनिंग आवर life processes or our body from the diseases, because the high accumulation of these nitrogenous waste in our body may cause death. ओके, क्योंकि अगर इनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो वो डेथ कॉजिंग भी हो सकते हैं. तो वेस्ट मटेरियल के टाइप्स क्या बोल रहे हैं हम? नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी वेस्ट. Respiratory waste for the plant is oxygen, while for the animal it is carbon dioxide, as we already know. Like during respiration the oxidation or of respiratory substance takes place. हमें पता है respiration में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सब्सटेंस निकलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हार्मफुल है वो रिमूव हो जाती है during exhalation from the lungs. So carbon dioxide is the respiratory waste of our body, while urea, uric acid and ammonia are the nitrogenous waste of the body in animals, in case of animals. Okay, so these are the waste material of our body. Some other waste material like oxalic acid, lactic acid, lactic acid के बारे में तो हमने सुना हुआ है कि whenever we do any extra work or high heavy work, then during incomplete oxidation of this glucose, lactic acid deposit in our muscle cells and causes muscle cramps and pain in our body. Some minerals or drugs, vitamins, hormones, cholesterol, bile products or bile pigment, biliverdin and urochrome, these are the other waste material which are formed in our body, which are harmful for our body and can be removed from our body. So the process which is helpful in removal of waste from our body is called excretion, and the complete system involving this excretion is called excretory system. So now we are going to discuss here about the excretion in human beings. In human beings also some of the waste material are formed during the metabolic activities. In human beings the excretion is brought about by organ system is called excretory system. Okay,
excretory system or urinary system, also called urinary system. Clear? So excretory system comprises with different organs which are involved in the excretory system are kidney, then ureter, it is a tube-like structure. Then third one we can call it as urinary bladder, and fourth is urethra. These are the important parts of our excretory system. Kidney, or they are in pair, 2 in number, exist in pair, situated in the lower abdominal cavity of our body. अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो यूरिन फॉर्मेशन में मदद कर रहा है. ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं. किडनी इज रेडिश ब्राउन इन कलर. ठीक है, एंड बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप्ड, और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं. लाइंग इन अ लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम. अगर हमारी बॉडी में ये वर्टिब्रल कॉलम है तो पीछे वाले साइड में ये दोनों तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, बैकबोन के दोनों तरफ ये 2 किडनी प्रेजेंट है. ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. ऐसे अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर वाइड होती है. ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. क्लियर? और 4 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी होती है. हर एक किडनी का वज़न 140 ग्राम से 160 ग्राम तक हो सकता है. द वेट ऑफ किडनी इज 140 to 160 ग्राम. द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली हायर देन राइट किडनी. मतलब जो राइट किडनी है, ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ है, जबकि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है. ओके, लेफ्ट इज समवॉट, राइट इज समवॉट लोअर एंड इन पोजिशन एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. क्लियर? बिकॉज यहाँ पर कौन आ जाता है, राइट किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ लीवर आ जाता है. तो लीवर ने जो अपनी पोजीशन ले रखी है उसकी वजह से राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे खसकना पड़ता है, उसको पोजीशन उसकी थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती है. ऑन द इनर कॉन्केव साइड किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हिलम. ओके, ये वाला जो डिप्रेशन है हाइलम, या लैटिन में हम किडनी को हम रीनल भी कहते हैं. रीनल मीन्स किडनी, और आर्टरी जो किडनी से निकल रही है उसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं. ठीक है, किडनी से जो 2 ट्यूब्स निकलती है उन्हें हम, द ट्यूब विच अराइज फ्रॉम किडनी इज कॉल्ड यूरेटर. द ट्यूब लाइक part of kidney is called ureter. They are also in pair. Ureter, it is a tube. These are the 2 kidneys. Okay, they are also in pair. Then the ureter opens into a sac-like structure called urinary bladder. This elastic walled bladder, urinary bladder, which collect the urine after formation, and the opening of this urinary bladder is called urethra. Okay, the opening of this urinary bladder is called urethra. Ureters are thin walled tubes. थिन वॉल होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं दोनों तरफ.
एंड ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और ये इसका काम क्या है, जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम ये यूरेटर्स का है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि हॉलो है, मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये पेल्विक कैविटी में एब्डोमेन के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये टेम्पररी स्टोरेज यूनिट है, यहाँ स्टोर होता है टेम्पररी फॉर्म में यूरिन। ठीक है, और यूरेटर से यहाँ पर पहुँचा है और इसकी कैपेसिटी आधा लीटर यूरिन स्टोर करने की है। ठीक है, इट कैन स्टोर अप टू 0.5 लीटर ऑफ यूरिन। द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर दैट रिमेन्स क्लोज्ड अंटिल द टाइम ऑफ यूरिनेशन। यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जो स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। इट इज़ कॉल्ड यूरिनरी स्फिंक्टर। दिस regulate the opening and closing of urethra. Clear? Now next one is urethra. It is a membranous tube that take the urine from urinary bladder. ये membranous है, थोड़ा सा झिल्लीदार है। ठीक है, membranous tube which exhale out the urine from urinary bladder. The external opening of urethra is also called urethral orifice. Okay. Now, what are the functions of these part? Just go through it. The function of kidney is, either you can write functions of kidney. Functions of kidney. First one is it filters the blood. फिल्ट्रेशन का काम कर रही है ब्लड के। किडनी का काम क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन, उसमें से एक्सक्रीट करवाना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देना, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बना था उसको फिल्टर आउट करना, रिमूव वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, इट परफॉर्म्स ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन करवा रही है मीन्स सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करके रख रहे हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन आवर बॉडी। ओके, देन इट सिक्रीट्स इरिथ्रोप्रोटीन एंड एंजाइम रेनिन। ये रेनिन और इरिथ्रोप्रोटीन नाम के एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इरिथ्रोप्रोटीन एंड रेनिन, एंड इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग फ्लूइड कंटेंट। रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। Of our body. So these are the important functions of kidney. As we already discussed the structure of kidney also, but we go through the structure of kidney in detail, that the single unit of a kidney, है ना, single unit of kidney is called nephron. तो इस नेफ्रॉन के बारे में और भी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। जस्ट इनफ फॉर टुडे एंड रिवाइज द पार्ट्स ऑफ excretory system in human being, or we call it as urinary system, and the parts are kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Revise it. Thank you. Have a nice day.